Hello students, in the previous lecture we have discussed about the rank of matrix by normal form. So last lecture में हमने normal form method के through rank निकालना सीखा था. So now in today's video we will find out the rank by echelon form. So first of all we must know that what is the echelon form. So echelon form क्या होता है? So now I am going to explain the echelon form, how to reduce the given matrix into echelon form. So first of all we must know what is the echelon form of the matrix. This is the echelon form of the matrix. Okay. So in simple word I can say a matrix is said to be in echelon form if the matrix is an upper triangle. This is not the exact definition. ये exact definition नहीं है. Just for the sake of understanding purpose I am saying in simple word कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, so I am assuming a matrix rectangular matrix हम ले रहे हैं जो m cross n ऑर्डर का है. Okay. So in this matrix ये echelon form में कब reduce हो जाएगा? When the elements below the diagonal element. Diagonal मतलब अब यहाँ पर आप ले सकते हैं कि जिनके लिए रो और कॉलम की पोजीशन सेम आ रही है, a11 a22 a33. It means that a11 a22 यहाँ पर कहीं a33 होगा, below this a33. If these elements are zero, ये सारे elements अगर zero हो जाएंगे, then we can say the matrix is in echelon form. Okay. तो हम this is just understanding. Okay. अब exact definition क्या है echelon form की? So I am writing the exact definition of the echelon form. So please pay your attention. So हम कोई भी matrix अगर आपको दिया है, so a matrix is said to be in echelon form. A matrix is said to be in echelon form. There are two conditions for the echelon form. What is that condition? The first condition, if the non-zero leading element, the non-zero leading element of each row is unity. Okay. What does it mean? Unity means one होना चाहिए. It means that हम बोल रहे हैं कि हर एक रो में आने वाला पहला नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट है ना, हर एक रो में जो लीडिंग सबसे पहले आने वाला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? इच रो में वन होना चाहिए. It should be unity. Is unity. And the second condition is that below this unity element, all elements must be zero. All elements must be zero. Must be zero. यहाँ पर हम दो चीज लिख रहे हैं, है ना. यहाँ पर आप देखिए, हमने कहा if non-zero leading element of each row is, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं should be unity. इसको आप ऐसा लिखिए should be. Should be means where we have some relaxation. हो सकता है, होना चाहिए, expected, है ना, but not compulsion कि वो वन हो. But this condition is must. So what is the difference between should and must? ये होना चाहिए, it's expected to convert the diagonal element into one, but नहीं है तो भी काम हो सकता है. But the second condition is a must condition. It means that जो elements non-zero elements होने चाहिए, a11 a22 a33, ये leading element हो गया. तो अगर हम first row की बात करें, in the first row the first element is a11. If this element is leading element है, हम इसको बोले non-zero element अगर है, तो ये non-zero होना चाहिए. इसको वन बनाने की कोशिश करेंगे, वन कर देंगे with the help of transformations. Then उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं like a21 a31 a41 ये सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. Similarly अब जब सेकंड रो में आप आएंगे, सेकंड रो में a21 we have told about that a21 जीरो कर दिया है आपने यहाँ है. Then a22 is the first non-zero leading element. अब जब a21 जीरो है, in that case सेकंड रो का पहला जो non-zero element होगा a21 होगा, and that leading element a22 must be should be 1. वो should be 1 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए. But जब ये 1 हो गया, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होना चाहिए. So this is the thing about the echelon form. So this is the definition of the echelon form. So अब मैं इसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Now I am writing about the steps. How can we reduce a matrix into echelon form? So just note down the steps to reduce a matrix into echelon form. What are the steps? So the very first step, a11 not be zero, should not be zero. Zero नहीं होना चाहिए, if possible, है ना. This is if possible. अब सपोज किया
कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो के सारे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, है ना। फर्स्ट कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो उस कंडीशन में हम A11 को नॉन जीरो यहाँ नहीं कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर इक्विवेलेंट फॉर्म को जो अप्लाई कर रहे हैं, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको माइंड में रखना है। दैट डायगोनल एलिमेंट को आपको नॉन जीरो रखना है, 1 रखना है, देन इसके नीचे के एलिमेंट को जीरो करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए कंडीशन है अप्लाई ओनली रो operations, only row transformations are applicable here. In equivalent form we can apply only rows transformation. इसका मतलब ये है कि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं इन इक्विवेलेंट फॉर्म देन वो गलत हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड वी आर अलाउड टू अप्लाई द रोज ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली। अब आप देखिए जो बता रहा था, A11 अगर जीरो है और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, तो किसी भी तरह से रो ऑपरेशन अप्लाई कर आप A11 को नॉन जीरो नहीं बना सकते। तो इसलिए हमने लिखा है इफ पॉसिबल। ओके, देन अब हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स था A11 नॉन जीरो एलिमेंट है, देन ट्राई टू कन्वर्ट दैट एलिमेंट इनटू 1। दिस कंडीशन इज शुड कंडीशन, ये शुड कंडीशन है, ठीक है। दिस इज शुड कंडीशन। शुड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, यू आर एक्सपेक्टेड, होना चाहिए। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी हम काम कर सकते हैं। सो दिस इज शुड, हो जाए तो अच्छा है। हो जाए तो अच्छा क्यों है, लाइक बिकॉज इन लास्ट नॉर्मल फॉर्म मेथड का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि अगर A111 हो गया तो उस 1 की हेल्प से ही हम बाकी सारे एलिमेंट्स को जीरो बना रहे थे, इसलिए 1 होना हमारे लिए अच्छा है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप, एज A11 हैज बीन कन्वर्टेड टू 1 विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, A11 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, बिलो दिस यूनिटी एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। तो क्या हम कहना चाहेंगे, बिलो दिस 1 जो सेकंड कॉलम और सेकंड रो का एलिमेंट है AI1, दिस मस्ट बी जीरो। दिस कंडीशन इज मस्ट कंडीशन, ये होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। सो दिस इज अ मस्ट कंडीशन, ये कंपलसरी है, होना चाहिए। AI1 मींस आई कैन से हियर आई की जो वैल्यू है वो 2 3 4 हो सकता है, A21 A31 A41 like that। When these three steps have been completed, it means A11 कर दिया आपने, A21 के नीचे जितने A21 A31 all elements are zero। Now what will be the next step is हम इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेंगे। Now we come to the second row। second row का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, A22 होगा। So we'll try to reduce A22 into non zero if possible, अगर है तो A22 को 1 बनाएंगे, this is should condition again, and then AI2 will be 0। AI2 means A32 A22 के नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होना चाहिए। So here I can say we'll repeat the above steps with remaining diagonal elements, with all diagonal elements। We'll repeat these steps with all diagonal elements। Okay, ये स्टेप्स आप करते जाएं, एंड जब फाइनली मैट्रिक्स आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो गया होगा, सो हम ये इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस क्यों कर रहे थे, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो व्हेन वी हैव कन्वर्टेड अ मैट्रिक्स इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म, देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये सब काम आपने जो किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए किया था। इन दैट केस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इज इक्वल टू the number of non-zero rows of the matrix। non-zero rows, अगर आपने मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको। सपोज एक मैट्रिक्स आपको दिया है जिसके एलिमेंट्स आपको इस तरह से दिए हैं। ओके, सो वी हैव कन्वर्टेड द मैट्रिक्स इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, सो दिस इज सम मैट्रिक्स हियर। नाउ इन दिस मैट्रिक्स आप जब बात करेंगे, so this is a matrix in इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, सो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आप देखिए नॉन जीरो आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी 1, शुड बी होना चाहिए, बट द मस्ट कंडीशन इज देयर बिलो दिस लीडिंग एलिमेंट ऑल आर जीरो। तो ये हमने एक मैट्रिक्स का अज्यूम किया है। यहाँ पर अगर आप कन्वर्ट करते हैं 1 में, देन दिस विल बी द कंडीशन। ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखिए all the rows are considered as the non-zero rows। non-zero rows से मेरा मतलब क्या है, a row in which we are having at least one
नॉन जीरो एलिमेंट, एक ऐसी रो जिसमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, दैट रो कैन बी कंसिडर्ड एज द नॉन जीरो रो। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमने दिया है एग्जांपल के लिए, इन दिस मैट्रिक्स ऑल द 4 रोज आर नॉन जीरो रोज। अगर सपोज किया दिस एलिमेंट बिकम जीरो, अगर ये जीरो हो जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द लास्ट रो विल बी कंसिडर्ड एज अ जीरो रो। लास्ट रो होगी जो लास्ट रो को हम कहेंगे जीरो रो। In this case, the number of non-zero rows are 3, 1, 2 and 3. These 3 are non-zero rows. तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी, हम बोल सकते हैं the rank of this matrix will be 3 because the number of non-zero rows are 3. So the rank will be 3 in this case. So ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है what is the echelon form and how can we reduce the matrix into echelon form. अब हम आगे की बात करते हैं. Now I am going to explain one question for your reference. So please pay your attention.